अगर हमको दिखता है कि देयर इज ए स्कोप ऑफ करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस गोइंग ऑन, पहले तो यहाँ पर 4 तरह का एफिडेविट आया मेरे सामने। महाराज पूरा स्टेट चल रहा है, आप ही केस करते हैं कि जितना सीओ अगर चिट्ठी चला रहा है बिना उसमें क्या कहते हैं डोकेटिंग नंबर नहीं है, प्रोसीडिंग नंबर नहीं है, झेल रहे कि नहीं? क्या करें वकील साहब, थोड़ा सा दिमाग चलता है कि मान लीजिए यहाँ से लेंगे तो 5 पॉइंट घसक जाएगा, अगर यही इसको शिफ्ट कर देंगे तो सारा पॉइंट अंदर सेंटर पॉइंट क्या होगा, तो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा कैसे पता चलेगा? 0 पॉइंट क्या अगर हम तो आप कुछ नहीं है आपके पास, न 0 पॉइंट है न रेफरेंस पॉइंट है कि भाई आप ऐसे कर दीजिएगा तो पिटिशनर ऐसे कर दीजिएगा, स्टेट तो ऐसे होगा कि ऐसे होगा, किसकी मर्जी से चलेगा? मर्जी नहीं ना चलेगा सर। हम नहीं डिस्प्यूट करेंगे, लेकिन हम इतना तो लिख सकते हैं कि आपने किस एरिया में स्लरी उठाने के लिए दिया ये आपको नहीं मालूम है, इससे बड़ा करप्शन का इशू नहीं हो सकता। हाँ तो है तो दोनों पर एफआईआर करेंगे, उसमें क्या करना है? आप समझ रहे हैं ना? हम आपने कहा हमको सिंपली ये पर्टिकुलर एरिया स्लर के लिए उसे आप रेंट भी ले रहे हैं, इट हैज टू बी आइडेंटिफाइड पीस ऑफ लैंड, मैदान उसको खुला छोड़ दीजिएगा क्या? पूरा सीसीएल उसको दे दीजिएगा? नहीं दीजिएगा, एक डिमार्केटेड एरिया दीजिएगा, वेयर दैट डिमार्केटेड एरिया इज, वही तो एग्रीमेंट में है। हाँ वही तो पूछ रहे हैं। आपने जो स्टेटमेंट दिया है आईएम में, जो ऑब्जेक्शन फाइल किया है, पैराग्राफ 5 पढ़िए, आपके लिए पढ़ देते हैं। That it is stated that for just and proper adjudication of dispute involved in the instant writ petition, the respondent CCL decided to demarcate the land in question which was allotted to the petitioner by using coordinate in the Google map. It is pertinent to mention therein that the land allotted to the petitioner was not demarcated at the time of handing over the possession of the land. However, as per the executed between the petitioner and respondent in terms of clause so and so stated, when the land rent for the use of land was computed as itana per square feet per year amounting to rupees itana. Therefore, the total area has been calculated as per the rent paid. क्या मतलब है भाई? There is no demarcation. There is no known area. But the parties not working on it. Not the parties not the party has not working. It is an official procedure, भाई. Correct. It is an official procedure. Between two, हाँ भाई तो कॉन्ट्रैक्टर है तो इसको जो मन में आएगा आप दे दीजिएगा। हम नहीं दिए उनको जो मन, वही तो कह रहे हैं। तो आप ही का पैराग्राफ 5 को हमको समझाइए। लैंड वाज कंप्यूटेड इतना है, देयरफॉर द टोटल एरिया हैज बीन कंप्यूटेड एज पर द रेंट पेड, नोट पर एज पर द एग्रीमेंट, रेंट पेड बाय द petitioner as per year, as per the calculation based on the land rent fixed by CCL, the total lease area granted to the petitioner is इतना square feet. Formula applied in computation of the area of the land is as per. तो फार्मूला अप्लाई करके आप एरिया तो क्या कहते हैं रकबा डिसाइड किए, और उसके बाद रकबा डिसाइड किए that is that as per the agreement the leasehold area which is the north side of the village road, as per the aforesaid computation the allotment of the land, the area of 88 decimal and itna allotted to the petitioner has been superimposed on the map, and the marked boundary clearly shows that all the points resources except one point recorded from the where the sample was committee. So as per the location J is concerned, the sample collected from the same place is not slurry. The committee has not found the presence of concrete material in so and so. इसके बाद देखते जाइए। But what is the agreement you are asking with NC? हाँ एग्रीमेंट में एरिया, हाँ पेज 33 ऑफ द पिटीशन, हाँ कैसे वर्कआउट होना था एग्रीमेंट की? हाँ तो क्या एग्रीमेंट आप लोग ने पढ़ देते पेज 33। The prima facie it appears that It I was have not been an कहा area. गया है। It was not an area which was given to him. Kindly appreciate this word. It was not an area which was given to him to कि जो स्लरी वहाँ है, उसको हम एक स्लरी दिए एक पॉइंट से वो उठाएगा, उसको जो हम लोग ये रेंट लिए हैं, because he has utilized this land for keeping his machineries. That is the occupation by him. But ऐसा नहीं कि इस एरिया में जितना स्लरी है उसको मिलेगा। पेज 33 sorry 33 में पैराग्राफ क्लॉज 4 क्वांटिटी सोर्स एंड एंड दिस इज अग्रीमेंट। The quantity of the coal agreed to be supplied by the seller and undertaken to be purchased by the purchaser shall be 13083 per tons per year from sellers' mines in central coalfields and or from international sources. So that what was the agreement is that I will give you slurry from any point, a particular quantity per year. It is not that slurry which receives. Now what has his case is that I set up a plant. वहाँ पे जो भी है, that was the area. It was just a rent for that. There is no contract that I will have to supply the slurry which is on that land. That's the case. Hence, बात सही है कि आपको स्लरी सप्लाई करना है, ठीक है? He will collect the slurry and use it
ऑन द पर्टिकुलर एरिया, area. जहाँ भी जिस भी एरिया में आप दिए हैं तो वहाँ पर करेगा. देयर आर टू डिस्प्यूट. वन इज रिगार्डिंग द सप्लाई ऑफ द स्लरी. That is not in dispute, we are supplied. They also don't say that we are not supplied. Now the second stage is come. Whatever salary he has received, he has deposited. He is in a process of using it. Yes, not. यही तो हो That सकता is है. not. अभी नहीं कर रहा शायद, अभी शायद कोई प्रोसेस नहीं, एक मिनट, अभी यूज नहीं कर रहा, अभी यूज नहीं कर रहा, अभी पढ़ा. तो दूसरा स्टेज है, क्योंकि आपका जो एफिडेविट है और सारा है, तो वेयर इज द देन द क्वेश्चन ऑफ एरिया, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ स्लरी ऑन दैट पीस ऑफ लैंड. करेक्ट. ये पैराग्राफ 5 आप ऐसा क्यों स्टेटमेंट दिए? क्योंकि द क्वेश्चन जो चला है पैराग्राफ 5 आप क्यों दिए? पैराग्राफ 5 का क्या पर्पस है? क्योंकि पहले इसलिए हम बार बार बोल रहे थे कि आपसे कई बार हम पूछे हैं कि शो मी द प्रोसीजर, क्योंकि अगर करप्ट प्रोसीजर है, a procedure itself is a corrupt. No, it's not a corrupt. It's a misuse by the petitioner. Lord. With all So respect what- to the petitioner, whatever may what is be- the writ petition about? We are unnecessarily diverting the scope. The petitioner's case. Kindly ask the petitioner stick. Permit the entry and egress to the petitioner for lifting the remains of the slurry. Is it an enforceable right, sir? Is it a contract? Go enforce in the civil court. वो बाद में आएंगे, नहीं, बाद में बस इसी का पहला है प्रेयर, आप इनका मेंटेनेबल ही नहीं रेट तो पिटिशन. मेंटेनेबिलिटी भी बाद में देखेंगे. अगर हमको दिखता है कि देयर इज ए स्कोप ऑफ करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस कहाँ गोइंग corruption है? ऑन, But schools है. पहले तो यहाँ पर 4 तरह का एफिडेविट आया मेरे सामने. कहाँ? 4 वो क्या कहते हैं, वोट कमिश्नर गया है, वोट कमिश्नर का कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट है. बहुत नहीं. ये वोट कमिश्नर Court कहते का- हैं, वोट कमिश्नर का कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट है. दैट इज बिफोर मी कि द थिंग हैज बीन मूव्ड इन सच ए डायरेक्शन, इन सच ए फैशन. So, और आप पैराग्राफ 5 में कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं. ये कुछ नहीं दे रहे हैं. यहाँ पे जो है वही तो कह रहे हैं. What happened? गूगल अर्थ से हम चल रहे हाँ, हैं, हाँ. लैंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं. When the contract has been initiated, then there was no identified land. Subsequently, land identify कर रहे हैं. कहाँ लेके जा रहे हैं केस को हम भाई? एक्सप्लेन कर दे रहे हैं. कॉन्ट्रैक्ट से ये दूसरा पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. अंडर द कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उनको स्लरी सप्लाई करना था. हम सप्लाई कर दी, इनका भी ग्रीवांस. इनका कहना है सप्लाई करने के बाद हम इसको यहाँ एक जगह पे रखे थे जो आप उनको दिए थे. नाउ योर ऑप्शन इज राइट कि वो जगह जो दिए थे वो डिमार्केटेड नहीं था. वही तो समझना चाह वो रहे हैं ना. बियॉन्ड द कॉन्ट्रैक्ट. हाँ. वो बियॉन्ड द कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज समथिंग बियॉन्ड द कॉन्ट्रैक्ट. अब इनका कहना है कि यहाँ पे जो जमीन हमको आप दिए थे, इस पे हम रेंट दे रहे थे, इस पे जो स्लरी पड़ा हुआ है ये मेरा है. So therefore, your lordship appointed a court commissioner. The first report came in our favor, 2:1. Your lordship appointed a second court commissioner. Her report is also there. We say that this was an error. The petitioner also did not say, and we also did not say, which is the exact area which can be said to have been given to the petitioner. हाँ. Now, after calculating it, back calculation करके जो आया है, we are saying except for one point where the court commissioner says where there is no slurry, all other points are just outside the. It was so adjacent, it's just outside the area. वो डिमार्केशन आज कर रहे हैं. वो मिनट तो वो भी नहीं, वो भी तो तो actually sorry, both of them are at fault. So there is no corrupt practice. There is no corrupt practice. here. यही करप्ट प्रैक्टिसेस है ना. No, there is no corrupt practice. In the sense, it's an official process. Anything you are giving, it is a state. He has to behave in proper fashion. आप जो भी दीजिएगा, अनडिमार्केटेड किसे दीजिएगा? जैसे मान लीजिए हम सीसीएल में ही देख रहे हैं या कुछ आता है, you are receiving the entire document, क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंटेड डॉक्यूमेंट. नहीं, annexure 2 अनडॉक्यूमेंटेड. महाराज पूरा स्टेट चल रहा है, आप ही केस करते हैं कि जितना सीओ अगर चिट्ठी चला रहा है बिना उसमें क्या कहते हैं डॉकेटिंग नंबर नहीं है, प्रोसीडिंग नंबर नहीं है, झेल रहे हैं कि नहीं? नहीं, उसको जो लैंड यूज करने दिए तो वो डॉक्यूमेंट है annexure 2 वो खुद लगाए पेज 24. हाँ, तो हम एफिडेविट में हमको क्या मिसगाइड और कर रहे पता नहीं मिसगाइड कुछ नहीं हो रहा है, क्लैरिफाई हो रहा हैं? है. कहाँ कर रहे हैं आप? तो बोल रहे हैं कि डिमार्केशन हो भी नहीं किया. वो डिमार्केशन पे हम दिखा दे रहे हैं. काइंडली कम टू annexure 2 वो जस्ट Why this affidavit? दिस एफिडेविट इज जो Why this affidavit when there is your land has already been demarcated? demarcation नहीं हुआ वही तो, but there is an order granting him permission. What is that order? Page annexure 2 page 20. After the contract was satisfied, this was a supplementary agreement. इसमें क्या दिखाना है? इसी में ये एरिया को दिए, गलती जो आप पॉइंट आउट करें दैट इज द मिस्टेक. यहाँ एरिया डिमार्केट नहीं है. यहाँ पे जब दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज द सप्लीमेंट्री वर्क ऑर्डर वाज गिवन इन द ईयर 2000, देन दे हैड टू वर्क इट विद इन 6 मंथ्स. 2000 का है. अब वो 6 मंथ्स में नहीं करके 2024 में 6 month notice submission of security deposit of इतना clears from बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो भी आफ्टर. महाराज आप किसी को भी जमीन दीजिएगा बिना डिमार्केशन का दीजिएगा. वो एक्चुअली वो तो गलती वहाँ हुआ ही है. That is the error happened in 2000. Now but they were supposed to remove this line in 6 months. 2000 में I am against an organization. He is supposed to act in accordance with law. Correct, but
I agree to that extent. There is an error on both sides, petitioner and the respondent. पिटिशनर के एरर से हमको मतलब नहीं ना, हम स्टेट के एरर से हमको मतलब है। स्टेट का एरर तो है ये कि वो डिमार्केट बिना डिमार्केट की कैसे लीजिएगा? नहीं हुआ था, it was very difficult to demarcate because slurry is in liquid form, so it was not spread in a very difficult shape. उसको demarcate exactly करना तो मुश्किल। इसका मतलब है कि एरिया आप उसको ज्यादा देने के फेवर में थे? नहीं, उसको हम लोग क्या किए, जो मार्क किए थे उसको एरिया में यहाँ पे आ गया ना कि ये आपका 0.37 रेट फिक्स कर दिए थे। कितना? या 0.37 पर स्क्वायर फीट रेट फिक्स कर दिए थे पर ईयर अमाउंट फिर कि जहां से भी तो अगर आप ही की बात मान ले कि बाउंड्री वाज नॉट सो इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क, हो सकता है कि अगर बाउंड्री इज नॉट सो इम्पोर्टेंट ड्यू टू द नेचर ऑफ मटेरियल अवेलेबल और मटेरियल ऑन द ग्राउंड, तो भाई आप थोड़ा बाउंड्री मांग ये मांग। लेकिन फिर जब आज बात आ रही है तो आज कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट बाउंड्री पर हम चलेंगे। हम इसलिए क्योंकि एडमिटेडली वो कितना पेमेंट किए थे मेरे को तो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर दिए है। तो जब बाउंड्री वाज नॉट इम्पोर्टेंट तो बगल वाला बाउंड्री अगर वहां भी स्लरी अवेलेबल, क्योंकि दिस एपिडेमिक इज ओनली टू नेगेट द report submitted by an agent. Yes, certainly. I file an objection to the report submitted by the court commissioner. I am entitled to. It is You not. are entitled. हम तो Yes. कह रहे हैं हम तो उसको दिखा रहे हैं कि ये नहीं, and we have not said that she or he is wrong. We are only saying that ये जो this पॉइंट fact, है, हाँ ये पॉइंट है जस्ट बाउंड्री से बाहर बाहर है। तो बाउंड्री कभी बना नहीं, और बाउंड्री नहीं बना आप खुद रीजन असाइन कर रहे हैं कि ड्यू टू द नेचर ऑफ मटेरियल लिक्विड था तो बाउंड्री अगल बगल हो सकता था, 5-10% इधर उधर माना जा सकता, कुछ एक होगा। ये तो नहीं ना है कि क्या कहते हैं 5 किलोमीटर दूर चले जाएंगे। लेकिन तो ये पॉइंट जो है जहाँ पर लिया गया है जस्ट आउटसाइड द बाउंड्री मींस है ना, थोड़ा 4-5 मीटर दूर है। 4-5 मीटर, तो जहाँ पर ये होगा लिक्विड फॉर्म में होगा तो 4-5 मीटर की दूरी का क्या दूरी होगा भाई? कुछ दूर है कुछ पास भी, एक बार मैप देख लीजिए जो है। हाँ, तो भाई कुछ दूर भी है कुछ पास भी। नाउ द पॉइंट इज व्हाट ये डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट है फॉर दिस फॉर अस। को डिटरमाइन करना डिफिकल्ट है, इसके चलते कोई केस छोड़ते हैं नहीं, बट दिस इज एन एनफोर्समेंट व्हिच इज नॉट ऑफ अ राइट अंडर आर्टिकल 226। वो हम देखेंगे, हम अभी तक आपको कोई डायरेक्शन नहीं दी। फर्स्ट आई वांट टू नो द ट्रूथ। करेक्ट, द ट्रूथ इज हियर अकॉर्डिंग टू अस देयर इज वन पॉइंट व्हिच इज एब्सोल्युटली ऑन द बाउंड्री। हां, ठीक है। There are 2 points according to the court commissioner which is inside the boundary, and there are few points which are outside also, very distant. So very distance means what? 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, जहाँ बाउंड्री है सर्टेन नहीं है। आप किसी को बाउंड्री बना के और अगर हम आपकी बाउंड्री मान लें, अगर हम आपकी बाउंड्री मान भी ले, जो वेरिएबल है कंसेप्ट, क्या करें वकील साहब, थोड़ा सा दिमाग चलता है कि मान लीजिए यहाँ से लेंगे तो 5 पॉइंट घसक जाएगा, अगर यही कोई शिफ्ट कर देंगे तो सारा पॉइंट अंदर सेंटर पॉइंट क्या होगा, तो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, कैसे पता चलेगा? 0 पॉइंट क्या, अगर हम तो आप कुछ नहीं है आपके पास, ना 0 पॉइंट है ना रेफरेंस पॉइंट है। 0 पॉइंट हम लोग लिए हैं मतलब इसको एग्रीमेंट को है प्लांट का जहां है ना, कहां प्लांट का जो है शायद, कैसे ले लीजिएगा? ये देखिए इसको उसको 0 पॉइंट लिए हैं। हाँ, तो अंदर क्या एग्रीमेंट में था 0 हां, पॉइंट? ये मतलब सो कंस्ट्रक्शन जिसका प्लांट नहीं तो कंस्ट्रक्शन तो कोना में भी कर सकता है, कहाँ जरूरत है कि बीच में कंस्ट्रक्शन करें? दीज आर द वेरिएबल, और आज आप उस वेरिएबल को अपने फायदा में यूज करना चाह रहे हैं। हम नहीं तो पिटिशनर बता देता है, फिर तो सिक्योरिटी का उससे नहीं मतलब, the way the proceedings has gone, the way has the क्या कहते हैं affidavits has come, that is creating trouble in my mind, that's all. Your Lordship is right. We are only trying to say that it may not be a case where the petitioner has a simple thing. There are complicated facts. Your Lordship is right. वो हम बाद में आएंगे। नहीं, हम कह रहे हैं कि वही उसी से आ रहा है। Facts complicated। वहाँ जहाँ complication deliberately create किया जाए। नहीं, deliberately नहीं। कि आप मैपिंग ऐसे कर रहे हैं, वेरिएबल है कि हम इसको मैप बना देंगे। करके बता देते। हाँ? वो मैप करके बता देते। तो वो क्या मैप करेगा? आपसे मैं पूछ रहे हैं। Who is he? Who is he? It is a situation. He is not petitioner, is a private party. Correct. I have can take assistance from the government. क्या कहते हैं? Government organization. Government organization is duty bound to assist me and to arrive at the truth. पहला चीज है, आपको वही पता है कि 165 ऑफ इंडियन एविडेंस भी एक्ट होता है कि वाले केस मेंटेनेबल है नहीं है, तो सेकंड स्टेज में देखेंगे। पहले दिमाग में ये होता है, पहले डिस्प्यूट को समझे, नेचर को समझे, केस को समझे, उसके बाद हम सेकंड स्टेज में आते हैं। तो केस समझने के प्रोसेस में जो बात हुई, ये हुआ तो भाई खुद कमेटी बना देते, कमेटी का एक रिपोर्ट आया, तो उस समय तक एरिया डिस्प्यूट में नहीं था। खैर जो भी है, सेकंड कमेटी बनाया तो उसने स्पेसिफिकली साइंटिफिकली कुछ किया, दैट हैज टू बी। तो साइंटिफिकली मटेरियल आप उस डिस्प्यूट को फैक्चुअल मैट्रिक्स ऑफ दैट एडवोकेट इज नॉट अंडर चैलेंज।
फैक्चुअल मैट्रिक्स आप नहीं कर रहे हैं, उसके सैंपलिंग पर क्वेश्चन नहीं कर रहे, एरिया पर क्वेश्चन कर रहे सैम्पलिंग पे नहीं कर एरिया पे कर हैं। कहिए रहे हैं तो धीरे धीरे कर रहे हैं, आपने सैंपलिंग पर नहीं किया, नहीं। लेकिन एरिया आप फिर ऐसा बना रहे हैं वेरिएबल है, और इट इज आप वेरिएबल ऐसा बना रहे हैं कि खाली उसके सैंपलिंग एरिया को उस डिस्प्यूटेड एरिया से बाहर कर रहे हैं। नहीं, अब हम हाँ बस ये जो है ना पॉइंट्स, ये पॉइंट्स है, ये एज पर कोर्ट कमिश्नर है, ये जो येलो वाला पॉइंट्स है, ये येलो वाला पॉइंट्स इन द रिपोर्ट इट इज गिवन कि यहाँ 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 हाँ, जहाँ से भी sorry, चल रहा है। अब Sample point. हाँ ये अब हम क्लैरिटी कर देते हैं, जो जहाँ पे हम लोग का गलती है या जिसका भी गलती है, वी आर सेइंग दैट ये एरिया आपका है, आपका कहना सही है कि आप भाई इस एरिया को जितना भी स्क्वायर फीट है, 17,000 13,000 स्क्वायर फीट है, ये एरिया ऐसे क्यों नहीं है, ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों, इसका क्या बेसिस है, दैट इज नॉट वेरी क्लियर। ठीक है, आई गेट दैट, आई अप्रिशिएट दैट। और अगर देखिए ऐसे समझिए वकील साहब, स्टेट काउंसिल बहुत एडवर्सरी पोजीशन में नहीं रहता, आप चूंकि स्टेट का कम काम किए हैं, लेकिन फिर भी यू आर ऑर्गेनाइजेशन का काम किए हैं। यस स्टेट, हम तो स्टेट का 18 साल काम किए। माई एटीट्यूड वाज सिंपल, वन मैन एटीट्यूड, आई हैव टू curtail my officer also, if they are doing something wrong they should be taken to the task। ये तो जानते हैं, हम लोग कभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को प्रमोट नहीं किया और कुछ नहीं किया। वी आर ऑलवेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द लिटिगेंट सिटीजन्स हु हैज बीन रॉन्ग। अगर रॉन्ग किए गए हैं तो टेक्निकल ग्राउंड पर लांगी मारने वाला कंसेप्ट समझते थे ना, हम आज तक लांगी मारने वाला वकील नहीं बन पाया, हम नहीं बन पाए। इसी के लिए ये भी बोला जाता था कि जो सरकारी वकील बन रहा है कभी से वकील नहीं बन पाया, क्योंकि इतना नेगेटिव दिमाग में हो जाता है खाली लंगी मारने वाला, जो वर्ड हम लोग यूज करते थे, नहीं हो सकता है। वी आर ऑलवेज हियर टू फर्स्ट टू एसर्टेन सब, और फर्स्ट हमारा एटीट्यूड रहता था एज ए गवर्नमेंट काउंसिल ऑल्सो, एज ए जज ऑल्सो, टू कंट्रोल द गवर्नमेंट ऑफिशियल। गवर्नमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफिशियल। चाणक्य का बोलना होगा, चाणक्य लीजेंड है, अब उसको तो क्वेश्चन नहीं किया नहीं कि अगर राजा एक काम कर लेगा ना तो बड़ा सक्सेसफुल राजा होगा, वो है कंट्रोलिंग द राज्य कर्मचारी। दे बाय नेचर दे आर एम्प्टी पीपल, इसलिए राजा का पहला काम होता है अपने कर्मचारी को कंट्रोल करना। हमारे यहाँ अभी विक्टिम में हम लोग भी देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैज टू बी कंट्रोल्ड। समटाइम्स गवर्नमेंट इज नॉट एट फॉल्ट, गवर्नमेंट वर्क्स थ्रू द गवर्नमेंट। आप लोग जो लेके आते हैं केस हुआ कि सीओ साहब चिट्ठी दौड़ा देते हैं बिना इसका डॉकेटिंग का, बिना प्रोसीडिंग का, हम पास कर रहे हैं कि हाँ 100%। उसमें हम किसको कंट्रोल कर रहे हैं, सरकार को, नहीं गवर्नमेंट ऑफिसर्स। क्योंकि एनी एटीट्यूड एंड अप्रोच हैज टू बी जस्टिस ओरिएंटेड और हैज टू हैव ए कंट्रोलिंग इफेक्ट अपॉन द ऑफिशियल्स, आइदर डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट और थ्रू द विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ठेकेदार पैसा नहीं दिया तो मैं बदल देंगे, और ठेकेदार पैसा दे दिया तो ऐसे बदल देंगे। These are the things which are coming to my mind. That is not acceptable. हमको जो सारा समझ में आया, जो गलती हुआ था वो 2000 में हुआ था। Your Lordship may also be right, 2000 में there may be why this was kept vague to benefit whom we don't know. Maybe the petitioner, maybe someone else, we don't know. होता है। There is one, हाँ देखिए हम आपको very frankly बताते हैं, एक इंडेक्स तो है कि कैसे ये जमीन, फिर भी हम कन्विंस नहीं है अपने ही से, ये रोड, the agreement says रोड के नॉर्थ में जो होगा होगा। Now Your Lordship may ask me a question, okay, रोड के नॉर्थ में होगा, बट रोड के यहाँ नॉर्थ में होगा कि यहाँ नॉर्थ में होगा, ये होगा। तो इसका एक जस्टिफिकेशन हम पूछ लेते हैं, बट इवन अदरवाइज द पॉइंट वुड बी देयर, द सेकंड पॉइंट वेदर आई एम राइट और दे आर रॉन्ग, दे आर राइट, वो बाद में आएंगे, बाद में आएंगे। आएंगे। If it is a dispute between two private individuals, matter is different. If it is a dispute with the government official, maybe the wing of the government, maybe the commercial wing of the government, even contractual matter में कोर्ट चला जाता है। Any official of the government, maybe the government wing, is not supposed to extract illegal money from the. There is no allegation, but we have Illegal meaning in the sense कि even आप लोग रोजे आते हैं admitted dues में, किस पर आते हैं कि काम ले लिया 73 का है, तो you have to pay. Even 73 का लेते हैं, state has to be on different footing, maybe the contracting party. यही जजमेंट है। but the same way will apply for petitioner will not unnecessarily benefit because of अननेसेसरी बेनिफिट नहीं देंगे, लेकिन कुछ तो लगे। लेकिन यहाँ जहाँ पर स्मार्ट, हम इसके पहले एक वर्ड यूज कर रहे थे, स्मार्ट लिटिगेंट, स्मार्ट एडवोकेट और स्मार्ट ऑफिशियल, अगर उस पर नहीं ना चलाएंगे प्रोसीडिंग कि भाई आप ऐसे कर दीजिएगा तो पिटिशनर ऐसे कर दीजिएगा, स्टेट तो ऐसे होगा कि ऐसे होगा, किसकी मर्जी से चलेगा? मर्जी नहीं ना चलेगा सर, नहीं चलेगा। और अगर मर्जी चल रहा है, for stopping that, apart from the right between the party, for stopping that, I will take it.
आई हैव टू टेक एक्शन बिकॉज आपको बताया कि मेरा एक ही पर्पस है और मैंने स्टेट काउंसिल के रूप में भी 18 साल वही काम किया है। आप भी जानते हैं, दोनों बेटर रहेंगे कि भाई हम स्टेट को कंट्रोल करें, किसी को नो ऑब्जेक्शन देने से नहीं रोके, ये क्या करते हैं, कंसेंट देने से नहीं रोके, कभी रोकते थे। हमने जितना वकील होगा जब भी हमसे मांगने आया है हम कंसेंट दिए हैं। तुम 1 घंटा बाद बहस करोगे तो करेंगे, क्योंकि मेरा ये नहीं था कि लंगी मार के उसको हरा दें। मेरा हमेशा रहा था कि ट्रूथ मस्ट प्रिवेल। इफ ए रॉन्ग हैज बीन कमिटेड और माई ऑफिशियल्स आर स्मार्ट इनफ, हमको आके समझाता था तो हम समझ जाते थे और उसको उल्टा समझा देते थे। दिस इज द राइट। आप आके हमको MSCP और ये CP और वो CP पर उल्टा समझाता था कि सर ऐसे होगा, सर ऐसे होगा, थोड़े समझते थे और कभी उसे समझे नहीं, इसलिए कोर्ट में कभी तकलीफ नहीं हुई। So they come up. और बाकी नहीं तो होता है बहुत सारे स्टेट काउंसिल आज तकलीफ में क्यों है, क्योंकि ऑफिशियल आके समझा देता है, समझ लेते हैं।